Thomas Jefferson once said, "The selfish spirit of commerce knows no country, feels no passion or principle but that of gain." Selfishness is not living as one wish to live. It is asking others to live as one wish to live. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Alia Sen, and welcome back to your favorite show, Just Junior. Just Junior. Friends, आते हैं हम every week आपसे मिलने और निकालते हैं आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दी और अच्छी पीकों के थ्रू वाटर सेविंग पर कहानियाँ सुनने। बिल्कुल आलिया, खास ख्याल रखते हैं हम अपने फ्रेंड्स का, अपने बिजी और हेक्टिक स्केड्यूल में फिट और तंदुरुस्त कैसे रह गए ये भी सिखाते हैं। यस दी, हमारे लिए फिट रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आलिया, मैं देखती हूँ कुछ बच्चे अपने आप में ही सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। दी, I think they may struggle to understand or acknowledge the feeling perspectives of others. Might be Alia, they may have difficulty in understanding the situation through another person's point of view. इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने से पहले चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में। बिल्कुल आलिया, क्योंकि फिटनेस भी तो एक सलूशन ही है। तभी तो फ्रेंड्स कहते हैं फिटनेस इज नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन समवन एल्स, इट इज अबाउट बीइंग बेटर देन हु यू यूज्ड टू बी। Yes, they no excuses, just result. बिल्कुल आलिया, चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में और सीखते हैं उनसे फिटनेस मंत्र। Good evening, my lovely kids. Hope you all are doing good. Welcome again to super energetic episode of Fun with Fitness with my two energetic girls, Ahana and Anvita. Let's begin our session with warm-up. Today's warm-up is hip swirl and windmill. Our focus today is lower body. First exercise which we will do today is jump and hold. This is a very good exercise for your leg strengthening. Second exercise which we will do is squat with arm lifts. This is a very good exercise for your glutes and arms.
Third exercise which we will do today is hopscotch. This improves balance and physical coordination. Fourth exercise which we will do today is squat and kicks on the sides. This is a very good exercise for overall strengthening of your leg. Let's cool down and don't forget to breathe in and breathe out when you are doing these exercises. And please do these exercises in the set of 3 to get the best results. Thank you for staying with us. See you next week. Till then, be active, be awesome. वाओ दी, कितने इजी स्टेप्स के साथ श्वेता दी ने एक्सरसाइजेस सिखाई और कूल डाउन तो मुझे बहुत ही रिलैक्स देता है। दी, कहते हैं ना, एवरी स्टेप इज प्रोग्रेस। बिल्कुल आलिया, little progress each day adds up to big results. दी, आपको पता है हमारे क्लास में एक बच्चा है, वो किसी से बात नहीं करता है, पता नहीं खोया खोया सा रहता है। आलिया, इसे सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर कहते हैं। दी, ये सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर क्या होता है और वो ऐसे क्यों होते हैं? फ्रेंड्स, छोटे बच्चों में कुछ हद तक आत्म केंद्रित व्यवहार विकसित रूप से सामान्य है, क्योंकि वे सामाजिक संपर्कों को नेविगेट करना और अपनी इच्छाओं को समझना सीख रहे हैं। हालांकि ये एक चिंता का विषय बन जाता है। आलिया, आज हम अपने एक्सपर्ट से इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट्स वेलकम मिस्टर अशोक पांडे। He is a pioneering figure in teacher development and school improvement. He has collaborated with multilateral agencies such as UNESCO and UNODC. Let's welcome Sir to our show. Thank you for inviting me. Thank you for coming to our show, sir. Please have a seat. थैंक यू सर। Let's also welcome little junior 14-year-old Avantika Narayan. She is in 9th grade from DPS Siddharth Vihar, Ghaziabad. She has won various accolades in shooting. She is an excellent shooter. Let's welcome Avantika to our show. Hi. हाय। Please have a seat, Avantika. थैंक यू। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। सर, जैसा हमने शॉर्ट वीडियो में देखा, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर क्या होता है? जैसे कि आपने शुरू में कहा कि
हमारे क्लास का एक बच्चा बड़ा अपने आप में खोया खोया सा रहता है, तो सिर्फ खोया खोया सा रहना सेल्फ सेंटर बिहेवियर के दायरे में पूरी तरह से नहीं आता है। सेल्फ सेंटर बिहेवियर का एक वो लक्षण हो सकता है, लेकिन सेल्फ सेंटर बिहेवियर के कई लेयर्स होते हैं, है ना। पहला लेयर तो उसका ये है कि भाई हम अपने आप पे बहुत ध्यान दें ना, अपने ड्रेस पे, हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो वो भी एक है सेल्फ सेंटर बिहेवियर, लेकिन वो शायद सब भी करते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते पूरी दुनिया सेल्फ सेंटर्ड है कि नहीं। अब उस लेयर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या होगा कि वो अपने आप पे जो ध्यान केंद्रित था, अब वो हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारे काम करने के ढंग में, जिसको एक्शंस कहते हैं, वो सब में अगर वो इतना हॉबी होने लगे कि हम पूरी दुनिया को भूल के केवल यही सोचने कि इस दुनिया में अगर कोई रहता है तो मैं ही रहता हूँ और सारी दुनिया जो है मेरे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। अब हम वो एक आत्म केंद्रित व्यवहार जिसको कहते हैं उसमें हम घुस गए हैं। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा ना कि अपने हाथों को फैलाओ, अपने दिल को फैलाओ, अपनी सोच को बेहतर करो, तो ये सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर को समझने का ये पहले या दूसरे सोपान हो सकते हैं, ये लैडर्स जो उसके। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं टीपीएस सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद के स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? I am Kritika Sharma and my question is, what are the impacts of self-centered behavior on family and friends? सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर आपके व्यक्तित्व को एक बड़े नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आपने केवल अपने आप पे ही केंद्रित कर लिया कि मैं ही हूँ, मैं ही अच्छी तरह से रहूँ, मेरी ही सफलता सबसे अधिक आवश्यक है, उसके लिए आपको अटेंशन सीकिंग की ज़रूरत पड़ती है, हर व्यक्ति का आपके ऊपर एक अटेंशन हो, आप सारी चीज़ों को कर रही हैं, उसमें कोई एक शुरू में जैसा कि आलिया ने बताया कि कोई दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो एक आपका व्यक्तित्व यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, आप सभी लोग विद्यार्थी हैं कि सोलो फाइट नहीं हो सकती है ना, हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें एक टीम वर्क करना है। अब टीम वर्क में शेयरिंग है सबसे पहले, टीम वर्क में केयरिंग है, टीम वर्क में क्रेडिट को भी शेयर करना है, सेलिब्रेट करना है टुगेदर। लेकिन ये सारी चीज़ें सबसे बड़ी जो बाधा बन सकती है, उसमें एक सेल्फ सेंटर्डनेस हो सकती है। हमारी फैमिली में भी कजिन्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, माँ बाप हैं, और अगर एक बहुत ही विकराल रूप ये ले लिया तो हमारी फैमिली भी उससे प्रभावित होगी। थैंक यू सर। तो अवंतिका, आप शूटिंग किस एज से कर रही हैं? मैं शूटिंग एज 9 से कर रही हूँ। अवंतिका, आपको किसने इंस्पायर किया शूटिंग के लिए? मुझे इंस्पिरेशन मिली है 2 दादी से, जो कि तोमर दादी थी, जो कि शूटिंग करती थी इतनी ज़्यादा ओल्ड एज में। वाह अवंतिका, उनसे तो मैं भी मिल चुकी हूँ, हमने उन्हें एक बार अपने शो में इनवाइट किया था। अवंतिका, तो आप ये बताओ, आपने कौन कौन से मेडल जीते हैं? मैंने एक हमारा जोनल लेवल था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता है, और मुझे सर्टिफिकेट में मिला है SFX शूटिंग चैम्पियनशिप में, जो कि दिल्ली में हुआ था। दैट्स जस्ट सो ग्रेट। अच्छा अवंतिका, आप नेशनल लेवल के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हो ना? यस, मैं नेशनल लेवल क्वालिफाई करके इंडिया टीम ट्रायल के लिए भी एक स्कोर होता है, उसको क्वालिफाई करके इंडिया टीम ट्रायल के लिए मैं जा रही हूँ। तो आप तो बहुत नर्वस हो गए फिर? नहीं। कॉन्फिडेंट हो? यस। अमेजिंग। अवंतिका, आप अपनी गन लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल। आप हमें दिखा सकते हो? हाँ जी। अवंतिका, मुझे पता चला है कि पिस्टल की सेफ्टी भी होती है, आप मुझे दिखा दो। हाँ, पिस्टल की सेफ्टी होती है। जो सेफ्टी फ्लैग है, इसको अगर हम इसमें इंसर्ट कर देंगे तो इसमें ना ही बुलेट चलेगी और ना ही कुछ होगा। जैसे कि हमारे मैचेस होते हैं, हमको मैचेस में जैसे कि हम थोड़ा रेस्ट करते हैं या फिर अपने कोच से मिलने जाते हैं, तो हमें इसमें सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट करना होता है, अदरवाइज इट इज़ लाइक बैंड। ओके, तो ये अलग से मिलता है सेफ्टी फ्लैग? नो, अगर हम पिस्टल लेते हैं तो पिस्टल के साथ ही आपको आ जाता है। अवंतिका, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, आपने हमें अपनी पिस्टल भी दिखाई और इसका यूज़ करना थोड़ा थोड़ा सिखा ही दिया। मैं आपको पूरा सिखा देती हूँ। हम आपसे प्राइवेटली बैठ के सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। वेलकम। फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और जूनियर गेस्ट
वो भी एक शूटर ही हैं। और उनका नाम है गायत्री मित्तल। She is a 8th grade student. She is just 13 years old and selected for shooting at national level. फ्रेंड्स, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I'm Yashasvi Garg and my question is, what are the characteristics of self-centered person? जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है वो दूसरों के लिए भला सोच ही नहीं सकता, कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, कोई एम्पैथी नहीं होती दूसरों के लिए, अपनी तरक्की, अपने बारे में सोचना, मेरा काम कैसे हो जाए, दूसरों का काम कैसे रुक जाए। तो ये आपके व्यवहार से ये चीज़ें समझना बड़ा आसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो दूसरों की विचार को, उनके पक्ष को किसी भी विषय पर सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये जो हम हिंदी में कहते हैं ना, बहुत ही जो है ये अपने आप में ही सोचते रहते हैं और ये चाहते हैं कि इन्हीं की तरक्की हो, इन्हीं की उन्नति हो, इन्हीं के अच्छे नंबर आ जाएं, इन्हीं को बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, इन्हीं को एक बहुत अच्छी गाड़ी मिले, दूसरे को ना मिले। तो ये चीज़ें उनके व्यवहार से, ये लक्षण ये हमारे समझ में आ जाते हैं। Thank you so much, sir. तो गायत्री मित्तल, आप हमें बताएं कि आपने शूटिंग किस एज से शुरू की थी? मैंने शूटिंग 13 एज से शुरू करी थी। ओह वाओ। गायत्री, आप मुझे ये बताओ कि आपने ये कैप और शूज़ क्यों पहने? शूज़ शूटिंग में एक इक्विपमेंट का काम करते हैं, वो जो हमारी मूवमेंट होती है लेग्स की, वो नहीं होती इन शूज़ से। और ये कैप का क्या पर्पस होता है? जब हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो हमारे बिल्कुल अबव लाइट होती है, तो वो आइज़ में लगती है, वो ना लगे इसलिए हम कैप लगाते हैं। वाओ गायत्री। तो आपने कितने मंथ्स पहले शूटिंग स्टार्ट करी? मैंने शूटिंग 1 मई को स्टार्ट करी थी 2023 को। तो गायत्री, आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, पर इतने कम टाइम में आपने इतना प्रोग्रेस कैसे किया? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं बच्चों से उनका अगला सवाल। I'm Paridhi Tyagi and my question is, what stage of child development is self-centered? ये मान के चलिए 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे में अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं कि वो अकेला रहना पसंद करता है, किसी बात पे वो दूसरे के साथ बात करके, डायलॉग करके और किसी एक नतीजे पे पहुंचना नहीं चाहता है, तो तब थोड़ी बहुत ये समस्याएं ऐसा लगता है कि अब वो आनी शुरू हो गई। ख़ास तौर से कि अगर वो बच्चा जो है किसी चीज़ को शेयर करना नहीं चाहता अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो वो एक लक्षण जब दिखने लगे, तो ये सारे लक्षण धीरे धीरे 12 साल, 13 साल, 14 साल और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब ये ज़्यादा, अगर सिर्फ एज की बात आप करें, लेकिन एक कोई कट ऑफ एज नहीं है कि हम कह दें नहीं 12 साल का हो गया तो अब वो सेल्फ सेंटर्डनेस उसके अंदर दिखाई ही देने लगे। Friends, can I have the next question please? Myself Shaurish Sharma. My question is, what is the difference between a self-centered person and a person who is narcissist? एक्सेसिव फोकस अपने आप हो, जिसे हम बोलते हैं कि नहीं मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और अपने आप को दूसरों के सामने दिखाना, और दूसरे अगर हमें अटेंशन ना दें तो हमें जो है उसमें तकलीफ़ होना, ये सब जो है वो नार्सिसिज्म जो आप कह रहे हैं उसके ये हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन जो एक ओवरऑल पिक्चर है कि बिना बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म ना भी हो, तो भी हम अपने व्यवहार में सेल्फ सेंटर्डनेस दिखा सकते हैं। अगर आपने जो है अपने किसी मित्र को बहुत सुंदर नोट आपने बनाया है, बड़ी अच्छी पुस्तक है, और आप उसको सिर्फ इसलिए ना दें कि वो भी इसमें से सीख लेगा, वो एक सेल्फ सेंटर्डनेस का ऐसा है, लेकिन शायद वो नार्सिसिज्म की कैटेगरी में ना आए। तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि जो सेल्फिशनेस है और सेल्फिशनेस में एक अहम आ जाए और हम ये सोचें कि अगर हमने ये ऐसा कर दिया तो मेरा भला नहीं होगा और दूसरे का भला हो जाएगा, तो वो दोनों का एक मिला जुला प्रभाव है जिससे हमें बचना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। My name is Spur Singh and my question is that being self-centered isn't a way of hiding our insecurities? यस, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। अब वो हाइडिंग डेलिबरेट है या वो सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी की वजह से वो है,
ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इनसिक्योरिटी तो है उसमें, क्योंकि इनसिक्योरिटी की ही वजह से तो आप सोच रहे हैं ना कि उनकी क्षमता हमारे लिए खतरनाक बन सकती है या हार्मफुल बन सकती है, ये इनसिक्योरिटी है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस निर्णय पे पहुंच जाएं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। Myself Ankita Singh, and my question is why this self-centered has so many negative impact? एकाकीपन जिसे लोनलीनेस कहते हैं, तो लोनलीनेस की तो समस्याएं होंगी ही ना, तो उससे तो हमें बचना ही पड़ेगा। लेकिन आपका सवाल मैं थोड़ा सा उसको दूसरे ढंग से भी देखना चाहता हूँ कि आप शायद ये कहना चाहती हैं कि क्या बुराई है इसमें अगर सेल्फ सेंटर्डनेस है, तो आप अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे। यही सोच जो कि मैंने शुरू में बताया था कि एक लिमिट के बाहर जब जाती है तो वो समस्या बन जाती है। आप अच्छे कपड़े पहने, आप देखने में अच्छे लगें, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो, आपकी आदतें अच्छी हैं, वो भी एक सेल्फ सेंटर्डनेस का हिस्सा हो सकता है ना, कि भाई हम क्यों देखने में बुरे लगें, हमारी ग्रूमिंग अच्छी क्यों ना हो, हमारी आदतें अच्छी क्यों ना हो, हमारे मूल्य अच्छे क्यों ना हो, तो वहाँ तक तो ठीक है, वो सेल्फ सेंटर्डनेस का हिस्सा नहीं है, वो सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो इसलिए अगर उन दोनों में आप फ़र्क कर सकें तो शायद मैं अपनी बात को समझा पाऊँ। Friends, can I have the next question please? My name is Vaishnavi Kaushik and I want to ask what do you think some people act as a self-centered way? एक तो ये है कि हमारे आसपास के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, जिसको कि हम रोल मॉडलिंग कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखकर सुनकर दूसरों के व्यवहार, जो ख़ास तौर से फैमिली में हमारे टीचर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, आसपास जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, तो अगर हम उनके व्यवहार को देखें, फिर एक जैसे विद्यालयों में, आपका विद्यालय बहुत ही अच्छा विद्यालय है, अब वहाँ पे आप डायलॉग्स करते हो, आप दूसरे के साथ, अब ये शूटर्स हैं, अब इन्होंने कंपटीशन करना है, लेकिन अगर ये थोड़े समय के लिए सोच लें कि मैं ही सिर्फ शूटिंग में आगे बढ़ूँ, दूसरा आगे ना बढ़े, तो शायद उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर उनके मन में जो सोच है वो बदलने लगेगी और वो इनके परफॉर्मेंस को वो प्रभावित कर सकता है। आप समझ इस बात? तो हम ये मान के चलें कि दुनिया में सबको आगे बढ़ना है। और अभी देखिए, आप लोगों के नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहीं पे प्रतिभा है, यहीं पे वैष्णवी है, यहीं पे आपका शौर्य है। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभाएं हैं, शौर्य है। आपको कुछ भी कर गुजरने क्या जो मादा होता है, एबिलिटी होता है, वो सब कुछ है आपके पास। तो इसलिए ये आप कभी ना सोचें कि दूसरे का फेलियर हमारे लिए सक्सेस बन सकता है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। तो गायत्री, जब आप पिस्टल का यूज करते हो तो उसका फोर्स वापस आता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? 10 मीटर में शोल्डर में बहुत कम फोर्स आता है, जिससे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर नॉर्मली हो जाती है। बट 25 और 50 मीटर में बहुत फोर्स लगता है, उसमें दिक्कत होती है, कभी कभी तो शोल्डर डैमेज भी हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेते हो गायत्री? अभी मैंने 25 और 50 की स्टार्ट नहीं करी है, अभी हम 10 मीटर की करते हैं, तो उसमें प्रिकॉशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड गायत्री, थैंक यू, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायर जो किया है। 1 साल की मेहनत में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। थैंक यू। थैंक यू गायत्री, आप हम सब गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन हो। 10. Self-centered behavior can contribute to feeling of social isolation and loneliness in children. Dear parents and teachers, it is important to address self-centered tendencies at an early age by teaching them empathy, consideration for others, perspective taking, to promote a positive social development in children. दी, कल मैं स्कूल में मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी वो वाटर को वेस्ट नहीं होने देती। वाह आलिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आलिया, हमें तुम्हारी फ्रेंड से कुछ सीख लेनी चाहिए। यस दी, बिल्कुल। आलिया, हम सबको किसी ना किसी तरीके से पानी को सेव करना चाहिए, व्यर्थ गंवाना नहीं है। यस दी, तभी तो मैं अपनी बेस्टी पीकू की सारी बातें फॉलो करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी। और दी, आपको पता है जल मंत्रालय ने तो पानी को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। बिल्कुल आलिया, पीकू ने हमें पानी को किस किस तरीके से और किन किन सोर्सेस से सेव कर सकते हैं, ये सब सिखाया है।
यस दी, तो चलते हैं पीकू के पास अपने फ्रेंड्स को लेकर और देखते हैं पीकू के पास कौन सी स्टोरी है वाटर को सेव करने की। चलो आलिया, जल्दी चलते पीकू के पास। यस दी, तो चलो चलते हैं। पीकू, आज कहानियों के पिटारे में से हमारे लिए कौन सी कहानी लेकर आई हो? आज मैं सुनाऊंगी पॉन्डमैन रामवीर तंवर की कहानी, जिन्होंने तालाबों की साफ सफाई की मुहिम चलाई है। तो चलिए चलते हैं सुनने इस कहानी पीकू की जुबानी। क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो। हाँ पीकू, आज मैं हमारे पास वाले तालाब को देख कर आ रही हूँ। क्या हुआ उस तालाब को? अरे पीकू, तालाब का पानी बहुत गंदा हो चुका है। हर तरफ कचरा ही कचरा फैला रखा है। अरे, तो तुम्हें भी पॉन्डमैन की तरह उस तालाब को साफ करना चाहिए। पॉन्डमैन? वो कौन है? तुम पॉन्डमैन को नहीं जानती? दोस्तों, हमारे तालाब में गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ का पानी हर दिन और भी खराब होता जा रहा है। आसपास के लोग साफ सफाई करने के बजाय यहाँ कचरा फैला जा रहे हैं। यहाँ का खराब पानी पीने से तालाब के आसपास रहने वाले जीव बीमार हो रहे हैं। तुम भी यही कचरा फेंकने आए हो? नहीं दोस्तों, मैं तो यहाँ तालाब की साफ सफाई करने के लिए आया हूँ। ओह, अच्छा। मैं ही नहीं बल्कि हमारी कॉलोनी के सभी लोग तालाब की सफाई करने आए हैं। जब तुम काफी लोगों से तालाब की सफाई के लिए बोलते थे, तब तो कोई नहीं आता था। हाँ, ये तो है। ओहो, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सब हुआ पॉन्डमैन ऑफ इंडिया की वजह से। पॉन्डमैन? वो कौन है? वो है रामवीर तंवर। उनकी ही सेल्फी विद पॉन्ड मुहिम की वजह से ये लोग यहाँ सफाई के लिए आए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी मुहिम है। क्या रामवीर तुम्हारी कॉलोनी में नए आए हैं? नहीं, वो तो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। अच्छा, क्या तुम मिल चुके हो? अरे दोस्तों, रामवीर ने तालाबों की सफाई का बीड़ा उठाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन तालाबों को बचाने की मुहिम की वजह से उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया हूँ। बस इसी पर हैरान हो गए? अभी तो और सुनो। सुनाओ। शुरू में तो रामवीर सिर्फ लोगों को जागरूक करते थे। धीरे धीरे वह इन पर बसे अवैध अतिक्रमण हटाने, तालाबों को सुंदर बनाने और पुनर्जीवित करने में लग गए। रामवीर तंवर के साथ आज करीब 1 दर्जन साथी हैं। अरे वाह, यानी लोग साथ चलते रहे, काफिला बनता गया। अब तक वो 40 तालाबों की सफाई कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। अरे वाह, हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना आलिया? उनकी अनूठी पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान की ओर से उन्हें विश्व संरक्षण सम्मान से नवाजा जा चुका है। हाँ, मुझे पता चला है। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी रामवीर की इस मुहिम के कायल हैं। पीएम ने 24 अक्टूबर 2021 को मन की बात कार्यक्रम में उनकी तारीफ भी की थी। तारीफ के लायक तो बात ही है। हम भी अब रामवीर जी की तरह अपने आसपास के तालाबों को साफ करेंगे और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। वाह बच्चों, बहुत खूब। रामवीर की इस मुहिम को हम करते हैं सलाम। जल में ही छिपा है धरती पर जीवन का सार। वाओ दी, कितनी प्यारी स्टोरी थी ना। बिल्कुल आलिया, बहुत मजा आया ये स्टोरी सुनकर। दी, तो चलो ले लेते हैं एक ईमेल। बिल्कुल आलिया। फ्रेंड्स, ये ईमेल आया सोफिया फर्नांडिस जी की तरफ से। वो लिखती हैं, आई एम 12 years old and I watch your show daily. It is part of my routine. The graphics are amazing. Pico is really cute and the hosts are adorable. I wish I could meet the cast and crew. Love all of you. Thank you so much. आपने इतना प्यारा ईमेल भेजा। Thank you so much.
friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Just Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और आप अपनी फीडबैक के लिए लॉग इन कर सकते हैं ddjustjunior@gmail.com पर और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.